स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। बच्चों, लिपिड्स का नाम सुना है आपने कभी? Reply quickly. Yes, you know. Then I'll go accordingly. नहीं सुना है, जल्दी बोलो। सुना है सर। सुना है। Then what are lipids? Any idea? Any idea? ये सब हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर से पहले, अच्छा है देखो यहाँ लिखे भी हैं, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक, लिपिड्स का पढ़ना है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स कवर हो गया था, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल बचा हुआ है। ये बोल्ड से जो था वो बचा हुआ था ग्रुप वो ए में। ओके, प्रोटीन पर मैं आऊंगा, पहले मुझे वो करना है कि कितना 3 या 4 में खत्म करूं, या 1 या 2 में, या 5 या 10, कितना आप लोग डाइजेस्ट करोगे। हम अभी स्टार्ट करते हैं इससे, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, या आप इसको मोर प्रिसाइजली लिखो, बायोलॉजिकल लिपिड्स। ठीक है, अब देखिए, those lipids which are found in biological systems. We are not talking about the lipids which are synthesized in the laboratory by chemical reactions. Yeah, the lipids which are found in biological systems, या plant या animal, bacteria या fungi. तो lipids जो है बहुत प्रकार के हैं, thousands of varieties of lipids are there. मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, आ रही है। यस सर। Thousands of varieties of varieties of different kinds of lipids. म्यूट करो। Different kinds of lipids are there. सवाल उठता है कि लिपिड्स है क्या फिर? ओके, तो लिपिड जो है, they perform a variety of functions in the cell or outside the cell also. ठीक, बहुत तरह के फंक्शंस लिपिड परफॉर्म करते हैं, और उसी बेसिस पर लिपिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन देयर फंक्शनल बेसिस, एंड आल्सो वी कैन क्लासिफाई लिपिड्स ऑन देयर स्ट्रक्चर. ओके, means their chemical structures. So we will see that one by one. First, it is a very interesting topic. Listen carefully. So basically lipid का definition क्या कहोगे? तो biological lipid, सर, organic compounds of carbon, hydrogen and oxygen containing more hydrogen and less oxygen in comparison to carbohydrate. Yes, you are somewhere right. So you are close. Okay. But I will say
that petrol is also a saturated hydrocarbon chain. Diesel is also a saturated hydrocarbon chain. Okay. Are they lipids? No, sir. That's why we talk about biological. We are saying about biological lipids. What are they? आप कहोगे बायोलॉजिकल लिपिड्स आर, यहीं पर लगा देते हैं, बायोलॉजिकल लिपिड्स आर these are a chemically diverse group of compounds करेक्ट। पहले तो क्या है, केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है एंड दे परफॉर्म a variety of functions of important functions. Correct? And as you have studied so far that biomolecules are soluble in water. Most biomolecules water में soluble है. Carbohydrate क्या है water में? Soluble है कि insoluble? Mostly they are soluble. Okay. Okay. Mostly they are soluble. Exceptions are there. जैसे cellulose is not soluble. But starch is soluble. हाँ, solubility जो है अलग अलग है. Glucose is readily soluble. Fructose are readily soluble. Monosaccharides are readily soluble. ठीक है, तो इस तरह से उनका है. Basically they are soluble. Correct? अब बताइए, are proteins soluble? Mostly they are soluble. These are also biomolecules made up of amino acids and amino acids are soluble. हाँ, अलग बात है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स जो है वो इनसॉल्युबल है, सम ऑफ देम. लेकिन फिर भी अलानिन सॉल्युबल है, ग्लाइसिन सॉल्युबल है. ओके, जिसमें कार्बन चेन बड़ा है वो थोड़ा उसका सॉल्युबिलिटी कम है हाइड्रोफोबिक सिटी की वजह से. अब DNA and RNA, these are also biomolecules and polymers made up of nucleotides and deoxynucleotides. DNA is made up of deoxynucleotides, RNA is made up of nucleotides. Are they soluble in water? Yes, they are also soluble in water. Okay. But this compound, this particular biomolecule, lipids, are insoluble in water. Except lipids, generally all other biomolecules are soluble, but lipids are insoluble. So that's how it becomes a different type of biomolecule. और इसकी insolubility की वजह से इसका फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिक, फेट, यह सब थोड़ा डिफरेंट हो जाता है from other biomolecules which are soluble in water, because your cytoplasm is largely water. Cytoplasm is an aqueous solution. So how these insoluble molecules behave in the aqueous phase, that becomes an interesting point to learn. So we will see that, and I have to see that how far we can go in your syllabus, because the points what
हम डिस्क्राइब करेंगे, कहीं आपके सिलेबस से बाहर ना चला जाए। ओके, तो वी विल सी दैट आल्सो, एंड इफ यू हैव क्यूरियोसिटी यू कैन आस्क मी, सो आई विल एक्सप्लेन मोर इन डिटेल। सो आई डोंट नो कि आप कितना डाइजेस्ट कर पाओगे, तो मैं बेसिक से समझाऊंगा आपको और आप उसको लर्न करोगे। ओके, जिसको नियम नहीं, Yes, sir. वीडियो को ऑफ कीजिए जो भी ऑन किए हैं। ठीक, तो अभी हम इसका डिफिनेशन पढ़ रहे थे। लिपिड्स का क्या है? केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड है और दे परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस एंड द डिफाइनिंग फीचर, ये इसका डिफाइनिंग फीचर बन जाता है क्या? इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। फिर क्या लिखोगे? एंड विथ डिफाइनिंग defining feature of which is insolubility in water. Correct? So this becomes its definition. ठीक है, अब हम देखेंगे लिपिड्स के। अब चूंकि इसका हम बता रहे हैं कि आर ए केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड, किस तरह के केमिकल, किस तरह का यह केमिकल है, तो पहले इसको आप जानोगे, फिर उसके बाद हम आएंगे दे परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर लिपिड का क्लासिफिकेशन। बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास अगर अच्छा से भी आप सुन लिए, समझ गए, याद हो जाएगा आपको, और दैट इज सफिशिएंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यू। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल स्ट्रक्चर लिपिड्स कितने तरह के हैं। करेक्ट, देखें हम लोग। Yes, sir. फिर उसके बाद हम फंक्शन में घुसेंगे, और फंक्शन में चूंकि केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बताएंगे, अब सिर्फ नाम याद रखोगे, टेढ़ा टेढ़ा नाम है, तो केमिकल स्ट्रक्चर अभी हम नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्या क्या डिफरेंट कैटेगरी है लिपिड्स के वो जान लोगे आप। उसके बाद जब हम फंक्शन के बेसिस पर लिपिड को क्लासिफाई करेंगे, तो उसी के अंदर आपका जो अभी एक से पहले वाला जो टॉपिक था फैटी एसिड, वो सब इंक्लूड हो जाएगा उसमें। एंड इन दैट, यानी फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन आपको देख पढ़ना है, ठीक है ना। इसके पहले वाला टॉपिक था, इसलिए हम उसको पिक नहीं किए, हम डायरेक्ट लिपिड को पिक किए, लिपिड के अंदर वो उसका पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यानी फंक्शन के बेसिस पर लिपिड को देखेंगे, और उस फंक्शन के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड, वहां पर फिर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी आप केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्या क्या टर्म है, दैट यू ट्राई टू मेमोराइज इट, ताकि बाद में हम इस टर्म को यूज करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। ओके, आर यू गेटिंग मी? सो Yes, sir. देयर आर 8 major categories of biological lipids that exist. Thousands of varieties जो हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड्स, उनको हम 8 कैटेगरी में बांट सकते हैं। हजारों तरह के लिपिड मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग तरह के, और उन सब का अलग अलग डाइवर्स फंक्शन है। कुछ बहुत छोटी कम मात्रा में शरीर को चाहिए, कुछ लिपिड्स जो है ज्यादा मात्रा में शरीर को चाहिए। ठीक है, वी विल कम टू दैट वन बाय वन।
तो नंबर 1 आपका है 8 मेजर कैटेगरी, जिसमें सारे लिपिड्स को आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फैटी एसिड। एसिड्स दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको राइटिंग? Is this clear? Yes, Yes, sir. Okay. Second one is glycerolipids. Lipids. Third one is glycerophospholipid. Fourth one is sphingolipid. Sorry. सब में एस लगा हुआ है, यानी फैटी एसिड बहुत तरह के हैं, ग्लिसरोलिपिड्स बहुत तरह के, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी बहुत तरह के हैं। ये कैटेगरी हो गया। स्फिंगोलिपिड्स बहुत तरह के। फिर है आपका स्टिरॉल लिपिड्स। रख लोगे? प्रिनॉल लिपिड्स। अब पूछोगे कि सर ये सब क्या है? I will give you example of this. फिर है एक, there is one more structural lipid and the name is sacrolipid. Sacrolipids. And 8th category is polyketides. ओके, ये 8 कैटेगरी है, सारे लिपिड्स इसमें आ जाएंगे। ठीक, तो इसको हम 1 बाय 1 पहले आप देख लीजिए कि हम अभी फंक्शन में जाएंगे तो इस वहां पर आपको इस सब का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे और किसका क्या फंक्शन है। तो फ्री फैटी एसिड्स, तो एग्जांपल पहले आप जान लीजिए। बहुत सारे फ्री फैटी एसिड्स हैं, पामीटेट, ओलिएट, लिनोलिएट, आप लोग जो सुनते हो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये सब जो है फैटी एसिड्स हैं। यानी फैटी एसिड्स आर एग्जांपल। पहले तो हो गया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड भी 2 तरह के होते हैं, तो एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब सैचुरेटेड में भी कई तरह के हैं। 16 कार्बन वाला जो फैटी एसिड है उसको पामीटेट बोलते हैं, 18 कार्बन वाला जो है उसको स्टीरिएट कहते हैं। ठीक, हम देखेंगे जब फंक्शन बताएंगे वहां पर स्टोरेज लिपिड्स के अंदर आपको सारे तरह के फैटी एसिड, अभी 1-2 एग्जांपल जान लो। 8 मेजर कैटेगरी। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए सैचुरेटेड है, पूरा हाइड्रोजन से सैचुरेटेड है। ओके, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक डबल बॉन्ड होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड होने की वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो गए पूरे मॉलिक्यूल में। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो यह पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। दीज आर वेरी एसेंशियल वंस फॉर योर हेल्थ। और इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि जैसे आपको अमाइनो एसिड्स में पढ़ाए थे कि सम आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी, लाइकवाइज
some polyunsaturated fatty acids, these polyunsaturated fatty acids cannot be synthesized in your body. Plant system can synthesize it, but animal systems, particularly mammalian cell, cannot synthesize these polyunsaturated fatty acids. तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं पूफा. पूफा. बार बार पॉलीअनसैचुरेटेड कहो, इससे अच्छा पूफा, यानी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड. और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कहते हैं मूफा. Monounsaturated fatty acids are not essential for your body because your body can synthesize it. Even saturated fatty acids your body can synthesize it. So these are the fatty acids. क्या fatty acids का रोल है वो हम आपको आगे बताएंगे अभी थोड़ी देर में. ग्लिसरोलिपिड्स होते हैं, ठीक है. ग्लिसरोलिपिड्स क्या है एक्चुअली, ये भी एक ग्लिसरोलिपिड्स में एग्जांपल आपका मतलब ग्लिसरोलिपिड्स हो गया आपका डाइएसाइल और या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स. डाइएसाइल and triacyl glycerols. डरना मत, सब समझ में आ जाएगा आपको. ये हैं इसके एग्जाम्पल्स. कई तरह के डाइएसाइल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं. डाइएसाइल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स का क्या काम है? दीज आर स्टोरेज लिपिड्स. आपके बॉडी में जो चर्बी है वो यही सब है. और ये किससे बने हैं? डाइएसाइल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स. एक होता है ग्लिसरॉल. अब स्ट्रक्चर में आपको बताएंगे. ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, वो 3 कार्बन कंपाउंड है. और इस ग्लिसरॉल में पहले तो ग्लिसरॉल में यानी यहाँ CH है, दिस इज CH बीच वाला, और ये मिथाइलिन है CH2 OH रहता है. दिस इज ग्लिसरॉल. तीनों कार्बन इसका हाइड्रोक्सी है. और ये ग्लिसरॉल है. अगर इस ग्लिसरॉल से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होकर के कार्बोक्सिलिक एंड, और फैटी एसिड का हम बताएंगे आपको भी, कार्बोक्सिलिक एंड इफ ज्वाइंस हियर वन फैटी एसिड देन सेकेंड फैटी एसिड, ये OH निकल जाएगा, ठीक है, H निकल जाएगा, यहाँ से ईस्टर बॉन्ड बनेगा, H रिप्लेस होके तो ये H जाएगा. 3 फैटी एसिड अगर ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन से स्टेरिफाइड हो गए, देन इट बिकम्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल. And this is the major storage form of the lipid which is found in your body, okay, in animals. Even in plants also. फर्क इतना है कि प्लांट्स में जो और इसको फैट भी कहते हैं, कॉमन नेम है फैट. फैट क्या है? यही है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल. ठीक. तो कई बार क्या होता है, 2 पोजीशन पर ही फैटी एसिड है तो डाइएसाइल कहते हैं, और मोनोएसाइल एक पोजीशन पर है तो मोनोएसाइल कहते हैं. लेकिन मोनोएसाइल इज नॉट फॉर्म ऑफ द, मोनोएसाइल इंटरमीडिएट है. मोनोएसाइल इज इधर कन्वर्टेड टू डाइएसाइल और ट्राइएसाइल, इसलिए ये. तो ये हो गया आपका. ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं आपके, ये मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं. जैसे फॉस्फेटाइडिल कोलिन हो गया, फॉस्फेटाइडिल सीरीन हो गए. ओके, हम मेम्ब्रेन लिपिड्स आपको पढ़ाएंगे तो आप वहां. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर फाउंड इन मेम्ब्रेन. स्ट्रक्चरल लिपिड है. कौन सा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक. स्फिंगोलिपिड्स, ये भी मेम्ब्रेन लिपिड है. स्फिंगोमाइलिन, गैंग्लियोसाइड, ये सब स्फिंगोलिपिड्स है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया. स्टेरॉयल लिपिड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, ठीक, ये भी एक लिपिड है. कोलेस्ट्रॉल नाम सुने होंगे. प्रोजेस्टेरॉन, हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन, दैट इज आल्सो ए लिपिड, स्टेरॉल लिपिड. ठीक है. लीवर से जो बाइल सॉल्ट्स निकलते हैं जिसकी वजह से फैट का
डाइजेशन होता है, लाइपेज एक्शन कर सकते हैं बॉडी को। आगे आपका एक किसी यूनिट पेपर में मैंने देखा है, फिजियोलॉजी में है डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, तो मैं और बताऊंगा आपको। जब आप फैटी डाइट लेते हो तो क्या होता है, बॉडी कैसे उसको एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लीवर जो है वो बाइल सॉल्ट्स रिलीज करते हैं। कहाँ जाता है बाइल सॉल्ट्स? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से फिर वो धीरे धीरे रिलीज होकर, जब खाना आया, स्टिमुलस आया, तो गॉल ब्लैडर से इन कंट्रोल्ड वे इट इज poured in the intestine. What it does in the intestine, it emulsifies the fat over there and it acts as the detergent. जैसे पानी में सर्फ घोलते हो बकेट में तो फेन हो जाता है, डिटर्जेंट झाग उत्पन्न होती है, उसी तरह बाइल सॉल्ट्स जो है झाग उत्पन्न कर देता है, क्योंकि ये फैट जो है इट्स नॉट वाटर सॉल्युबल। जो आपने खाना में फैटी चीज खाया, तेल या पिज्जा, उससे बटर, सैंडविच, ओके, लाइक दिस, जो भी फैट आपने लिया, चाहे छना हुआ, तला हुआ, जो भी आप फैटी, आजकल फैटी सब्सटेंस बहुत लोग खाते हैं डाइट में, वो सारे फैट्स जो हैं इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगा, वाटर सॉल्युबल नहीं है तो कैसे एब्जॉर्ब होगा, कैसे डाइजेस्ट? पहले तो डाइजेस्ट होना जरूरी है। कैसे डाइजेस्ट होगा? क्योंकि एंजाइम जो है वो वाटर सॉल्युबल है, एक्वस फेज में वर्क करेगा। वन सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। सो हम क्या बता रहे थे? स्टीरॉल लिपिड्स, ठीक है ना। तो स्टीरॉल लिपिड में एक बाइल एसिड है, सॉल्ट है, कितना इंपॉर्टेंट है सोच लो। वो क्या करता है, जो भी आप खाए फैटी सब्सटेंस उसको इमल्सिफाई कर दिया। इमल्सिफिकेशन से क्या हुआ, फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर सेपरेटेड नाउ एंड दे आर सस्पेंडेड इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड बाय दिस इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। तो अब क्या होगा, लाइपेजेज जो है, बहुत तरह के लाइपेज होते हैं, लाइपेजेज होते हैं इंटेस्टाइन में, जो पाए जाने वाले लाइपेज है वो लाइपेज फिर उस पर एक्शन करता है, फैट को तोड़ देता है। आप जो भी फैट खाए उस फैट को, जैसे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स आप काफी खाते हो, ओके, जो नॉन वेज खाते हैं जो लोग, वो काफी ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स खाते हैं, ओके, तो उनको ब्रेक कर देगा ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल या मोनोएसाइल डाइसाइल ग्लिसरॉल्स में, ज्यादातर मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। और फिर उसका, अब जब ये अलग अलग हो जाएगा तो फैटी एसिड्स भी, चूंकि अब कार्बन लेंथ